Good morning, student. I am Rajendra Simori, your maths teacher from the Gnan Manjari Vidyapith Moa. At the last session, we discussed in the class 7. Yesterday, we discussed in the lecture, that is our practice question number 4, and that is available in supplementary book 7. And last one, today we discussed this last point of first semester end examination. So today we discussed the last points, and then after we discussed some practice and some exercise I want to give in front of you. That's why you can also doing same practice. Okay. So first of all, standard form of a number, that is given in SB8. That is the last page that we discussed today, and then after we conclude our syllabus of first term. So up to the end of this chapter, this is the last chapter. So this is the last points of this units chapter, standard form of a number. Now we are given here that standard form of a numbers का मतलब क्या होता है. Any number can be expressed as a decimal number between 1.0 and 10.0, including 1.0 multiplying by a power of 10. Such a form of a number is called its standard form. मतलब 1 से 10 के बीच में कोई भी डेसिमल नंबर से हम रिप्रेजेंट करते हैं तो इंक्लूडिंग 1.0 मल्टीप्लाइड बाय विथ पावर ऑफ 10, 1.0 को 10 से मल्टीप्लाइड हम करेंगे, इसी टाइप का फॉर्म को हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए नंबर बोलते हैं. मतलब इट इज अ वन काइंड ऑफ प्रोसीजर ऑफ multiplications among the decimal points. So just we have to take. तो इसमें आप फिगर में और अपनी सप्लीमेंट्री बुक में आप देख सकते हो कि 49 इज इक्वल टू 49 डिवाइड बाई 10 इंटू 10. सो 49 को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो ऑटोमेटिकली इट कवर्स 4.9. सो 4.9 इंटू 10, सो दैट इज अ नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 10. 10 के मल्टीपल में सेकंड कॉलम में हम रखेंगे, और उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे रखेंगे, 4.9 इंटू 10 रेज़ टू 1, क्योंकि यहाँ पे हमें एक ही 10 से उसको मल्टीप्लाई करना है, क्यों एक्चुअल नंबर 49 है, दैट्स वाई. दूसरा नंबर ले लो 490. तो 490 का मतलब होता है 4.9 इंटू 100 से हमें उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो पावर जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 4.9 इंटू 10 रेज़ टू 2 आएगा. 4900 को हम उसको 4.9 यानी मल्टीपल विथ द टेंस के साथ उसको मल्टीपल करेंगे तो 4.9 इंटू 1000 आएगा, क्योंकि 1000 के मल्टीपल में है. तो 4.9 10⁻³ कंसीडर करेंगे. तो ऐसे हम आगे बढ़ेंगे. 10⁻⁴, 10⁻15, जितने भी नंबर से आप देख सकते हो कि 3 नंबर से तो हम 10⁻⁴ यूज कर रहे हैं, 4 नंबर से तो 10⁻³ हम यूज कर रहे हैं. तो वैसे ही हमारे पास 49 जो भी इंसर्शन यहाँ पे इंडिकेट्स हुआ है, सो वी कैन यूज एज ए 4.9 इंटू 10⁻13, because we have find out here 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. So 13 zeros we can directly put as a 10⁻13 here. तो ये जो चीज है वो बड़ी इजी है, आप अपनी बुक्स में भी देख सकते हो. The standard form is an application of an exponent notation and helps us to represent very large numbers in a simple manner so that it becomes easy to read, understands and compare such kinds of the number. अभी यहाँ पे 3 एग्जाम्पल्स ऐसे दिए आपको कि स्पीड ऑफ द लाइट इन वैक्यूम, वैक्यूम में लाइट की स्पीड कितनी है. तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि यदि हम ये लिख के बोलने का प्रयत्न करेंगे जो उसके एक्चुअल जो नंबर से, then it will very difficult to speak. So that time if we have to convert it into the standard forms, then it will easily read like 3 into 10⁻², and 10⁻n milliseconds, then it's easy for us. Otherwise it will difficult for us. So that's why we have to use this kinds of the application of standard form of a number. Distance between the sun and the earth, that is very huge into the numbers, but
We can't be use these kinds of the number as a reading. So once we have to read, then always it must be converted into the standard form. And standard form हमें पता है कि वो कोई भी डेसिमल नंबर्स को 10 के साथ मल्टीप्लाई करने से ही वो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होगा. तो ये स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम हो, या डिस्टेंस बिटवीन सन एंड द अर्थ हो, या मास ऑन द अर्थ हो, ये आप सभी चीज को देख सकते हो कि इट विल बी very easy to convert into the standard form, and it is also be easy for reading purpose. So that is very easy concepts over here, and this is the last one concepts of this chapter, and then after we discussed onto the more exercise on it. So let us move on to the some practice questions in the revision point of view. अब हमारा सिलेबस फर्स्ट टर्म्स तक तो कंप्लीट हो गया. अब हम प्रैक्टिस क्वेश्चन इसी यूनिट के प्रैक्टिस क्वेश्चंस को फिर से रिवाइज करते हैं. तो इसमें क्या था, अभी भी जिसने भी ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैंडल नहीं किए वो इसमें से प्रैक्टिस क्वेश्चन हैंडल करेंगे आज. प्रैक्टिस क्वेश्चन 1.1, ये जो रिवीजन है आज, रिवीजन क्या करना है ये मैं आपको बता रहा हूँ. प्रैक्टिस क्वेश्चन 1.1 का क्वेश्चंस ये चारों चार ABCD, जैसे कि आपको क्या लिखना है उसमें आज आप लिखेंगे. आप अपनी फेयर बुक में भी लिख चुके हो, वही चीज आज रिवाइज करनी है. दूसरी चीज 1.2, इसमें ABCDEF करके कितने क्वेश्चन थे, दो क्वेश्चंस, सॉरी A, B and C, D, जिसमें आपको वैल्यू फाइंड करनी है. -3/4 है तो आपको -3 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है. इसी टाइप का ये चारों चार क्वेश्चन है जो आप आज सॉल्व करेंगे. मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है. सो प्रैक्टिस क्वेश्चन 1.2 की पूरी आज रिवीजन आप करेंगे 1.2. फिर आपको रिवीजन में प्रैक्टिस क्वेश्चन 2.1 है, उसमें ABC एंड DEF, जिसमें स्क्वायर भी निकालना है और क्यूब भी निकालना है. 14 का स्क्वायर भी निकालना है और क्यूब भी निकालना है. 14 का स्क्वायर का मतलब 2 टाइम 14 का मल्टीप्लीकेशन, एंड क्यूब है तो 14 का 3 टाइम मल्टीप्लीकेशन. तो इस तरह से आपको 2.1 क्वेश्चंस के ABC DEF आपको हैंडल करना है. एंड देन आफ्टर प्रैक्टिस क्वेश्चन 2.2, जिसमें आपको सॉल्व करना है -2 × 10⁵. तो -2 को 10⁵ का मतलब 10 का 5 टाइम मल्टीप्लाई करके उसको मल्टीप्लाई कर देना है -2 के साथ. तो जो भी आंसर आता है वैसे आपको फाइंड करना है. तो इसमें 2.2 में ABCD चार क्वेश्चंस इसमें सॉल्व करने हैं. और लास्ट में 3.1 के दो पेजेस है. आपको बताया गया कि नंबर बेस एक्सपोनेंट, एक्सपांडेड फॉर्म एंड स्टैंडर्ड फॉर्म. जहां जहां पे खाली जगह है वो आपको तो यहाँ पे आंसर के साथ दिया है, आप अपनी बुक में से देख सकते हो, और वही चीज फिर से आप रिवाइज करेंगे. 3.1 के दो पेजेस है, दोनों पेजेस आपको आज एक्सरसाइज में सॉल्व करना है. तो ये हुआ आज का रिवीजन अप टू द, और कल मैंने एक्सरसाइज 4 आपको कंप्लीट करवाई थी. तो ये पूरी चारों चार प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो आज आपके यूनिट नंबर 3 के फर्स्ट चैप्टर में थी, जहां तक हम सिलेबस में जाएंगे. अब नेक्स्ट टाइम हम रिवीजन में फिर से यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, ये जो आपको बताए वो यूनिट नंबर 3 था, यूनिट 1 एंड यूनिट 2 की ऐसे ही प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके सामने रखूंगा. और मैक्सिमम एग्जाम्स जो हमारी आने वाली है उस एग्जाम्स में इसी टाइप की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस क्वेश्चंस की ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे. ओके, so I hope so that you revise and work hard at your home, and if you having any kinds of the doubt then you can ask me. Thank you very much.